Nehru and his rejection of permanent UNSC seat. It is a very controversial topic, and many people have taken yes and no sides here. But I don't think history really works in a yes and no or a black and white situation. So there are two questions that need to be addressed. First one is, was the decision good or bad, or should we have taken the seat? Okay. And the second question is, why the rejection happened. Was he a weak prime minister? Did he not know well? Okay. So let us understand this entire concept by these two questions, and I hope I actually address all the issues in these two questions only. So the first question, was the decision good, or should we have like taken the seat if it was offered? My take on this is yes, the seat should have taken. We should have taken the seat, and we would have a better position in worldly matters today or international relations today. We would have a dominant position. Although UN, as you can see, current political scenario around the world, UN is not so much bringing a change, but still, the seat should have been taken. This is first question addressed. Let us come on to the second question. Now I know this कि seat ले लेनी चाहिए थी. Was Nehru so ill informed that he didn't know things? जो मुझे पता है क्या उनको नहीं पता होंगी? राइट, उनको नहीं पता थी. हाउ? क्योंकि मैं बैठी हूँ 2026 में, मुझे पता है कि ऑल द वे टू द 20th सेंचुरी क्या हुआ. उनको नहीं पता था. ही वॉज सिटिंग इन 1945, 1946, 1950. वहाँ पे जो पर्टिकुलर टर्मोइल चल रहा था, ही डिड नॉट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी unfolding, right? So there are few things that we need to understand. We need to understand the context of declining that seat. Okay, so whenever you read history, listen history, I would recommend you to refer books first of all, not just the oral history. सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना is a blunder in history. So for me, I have taken help of three books. First one is Modern World History by Norman Love. Second very important book which gives a good context into world situation, India since independence. This is by Bipin Chandra. And third one is A History of the Modern World by Jain and Mathur. Okay, so these are pretty heavy books, and most of them, two of them deals with world history, and this particular book deals with Indian history, but has a very nice segment on what happened during and before and after the independence wala era. So let us come on to the context now. These are the three books. I'll write the names and chapters that I have taken reference from, so you can go and yourself check them. Okay, so let us come on to the UNSC permanent seat first. UN का जो आज स्ट्रक्चर हम जानते हैं, आज इंपॉर्टेंस जो हम जानते हैं, क्या वही उसकी इंपॉर्टेंस रही होगी उस समय पर जब वो इस्टेब्लिश की गई थी? क्या वो ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस्टेब्लिश की गई थी? नो. इससे पहले लीग ऑफ नेशंस इस्टेब्लिश किया गया था. हमें थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड वॉर 1 हैपेंड. वर्ल्ड वॉर 1 का डेवेस्टेशन देखते हुए कुछ वर्ल्ड लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम लेके आएंगे लीग ऑफ नेशंस. 1920 में डिसाइड हुआ ये, जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो गई 1918 में. उसके बाद 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, लीग ऑफ नेशंस. नाउ दिस लीग ऑफ नेशंस ऑब्वियसली फेल्ड. वो लेके इसलिए आई गई थी कि आगे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना एग्जिस्ट करे, ना आए. लेकिन ऑब्वियसली वी नो दैट वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, सो लीग ऑफ नेशंस फेल्ड. लीग ऑफ नेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके चक्कर में ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड. नाउ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended in 1945, and later the same year United Nations was formed. Whoever is sitting in that era can think of this in a manner जैसे ही लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ था वैसे यूएन इस्टेब्लिश हो गया. इतना टर्मोइल है पॉलिटिकल, कैसे ही चीज़ें ठीक होंगी. बट एनीवे, यूएन इस्टेब्लिश्ड इन 1945 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. India got independence in 1947 and China got independence in 1949, 2 years later than India. ठीक है, अभी क्या चल रहा है सिचुएशन इंडिया जैसी कंट्रीज में? वो ये चल रहा है कि हम जस्ट आज़ाद हुए हैं, हम जस्ट कॉलोनियल रूल से बाहर आए हैं. तो दे वर काइंड ऑफ गेटिंग यूनाइटेड
बाय अदर कंट्रीज, क्योंकि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अभी भी कॉलोनियल रूल में ही थी, जैसे चाइना जैसी कंट्री जो है वो अभी भी कॉलोनियल डोमिनेंस के अंदर थे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी. तो इंडिया डिड नॉट वांट टू टेक साइड्स. नाउ लेट्स कम डायरेक्टली onto the seats offered. So 2 times the UNSC permanent seat was offered by 2 major military blocks. Very important, 2 major military blocks. First block is USA. They offered the seat in 1950 to India. Second time it was offered by USSR in 1955. अब समझने वाली बात ये थी कि ये दोनों ही मिलिट्री ब्लॉक्स ऐसे ब्लॉक्स बन गए थे जिन्होंने अपने अंदर पूरा वर्ल्ड संभाल लिया था. मतलब कि दे वर एक्चुअली कलेक्टिंग कंट्रीज जो यूएसए की साइड होंगी. दे वर यूएसएसआर सोच रहा था कि कुछ कंट्रीज मेरे साथ आ जाएं, तो दे वर ट्राइंग टू मेक अ बाईपोलर वर्ल्ड विच इंडियन पॉलिटिकल पावर डिक्लाइंड. उन्हें लगा कि हम जस्ट आज़ाद हुए हैं, हम जस्ट कॉलोनियल थे, इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आए हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी एक मिलिट्री ब्लॉक के साथ होना और दूसरे के साथ दुश्मनी ले लेना, क्योंकि अभी हमारा इतना बड़ा स्ट्रगल एंड हुआ है ब्रिटिशर्स के साथ, तो हम जो है इस पूरे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं. तो एक नेहरू ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. वो फॉर्मली तो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, पर उसकी बातें और उसका एक इनफॉर्मल तरीके से प्रचार प्रसार वो कर रहे थे. उनको था कि हम किसी एक ब्लॉक के साथ होना नहीं चाहते हैं. और ध्यान देने वाली बात यही है कि उस समय चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब नहीं थे. वी वर जस्ट आउट ऑफ अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर. हमें जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी, चाइना को जस्ट इंडिपेंडेंस मिली थी. तो हमारा ये था कि भाई हम, क्योंकि इट इज़ अ वेरी क्लोज नेबर, वी हैव टू हैव अ गुड पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद चाइना. सो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का टेक ये था कि मैं ना कि इन 2 मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ मिलके एक सीट ले लूँ और बाकी जो छोटी छोटी पावर्स हैं जिनका डिकॉलोनाइजेशन हुआ है वो अकेले रह जाए. उनका एक था कि मैं एक ग्रुप ऐसा फॉर्म करूं जो किसी के भी साथ ना हो, और उसी को हमने आगे जाके नाम दिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ही वांटेड टू हैव अ न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी because of the struggles that India had faced. So that was the major reason of declining those 2 seats. We did not know that China is going to backstab. हमें नहीं पता है, वो 1962 में हुआ है, उसकी सिचुएशंस बहुत बाद में स्टार्ट हुई. We tried our best that we make a friendly relationship with the country. Okay, things got bad when China captured Tibet, and then their revolt happened. Then the Dalai Lama shifted to India for asylum, and we gave it. And then in थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी 1959 में, and then that it got culminated into full scale war in 1962. We all know that. UN का जो हम बार बार बोलते हैं कि सीट क्यों डिक्लाइन करी, ले लेनी चाहिए थी, उसका मेजर रीजन यही था कि जिन 2 कंट्रीज ने ऑफर किया था वो एक मिलिट्री ब्लॉक बना रहे थे, और इंडिया डिड नॉट वांट दैट. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यूएन का जो स्ट्रक्चर हमें आज पता है, जो इंपॉर्टेंस हमें आज पता है, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बैक इन टाइम. आप सोचिए, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत यंग थी. हमें नहीं पता था कि वो लीग ऑफ नेशंस की तरह फेल हो सकती, हमें नहीं पता था कि वो लीग ऑफ नेशंस की तरह फेल हो जाएगी या सक्सेसफुल रहेगी भी कि नहीं रहेगी, है ना. उसके चक्कर में हम एक बहुत ही क्लोज कंट्री से अपने रिलेशंस खराब कर लें, वो नहीं समझ में आया, राइट. हाँ, तो यहाँ हमने दोनों क्वेश्चंस एड्रेस कर लिए कि क्या हमें सीट ले लेनी चाहिए थी. इसका तो आंसर है यस, ले लेनी चाहिए थी भाई, ठीक है ना. वो अपने आप देखें, उनकी सीट है, हम क्या करें, है ना. उनको जो करना है वो करें, क्योंकि बिकॉज चाइना डिड दैट. नेहरू डिड नॉट ओनली रिजेक्ट द सीट, ही ऑल्सो सेड कि चाइना को दे दो, which I do not support at all. If you were not taking, you should not have moved forward with the statement that you should give the seat to China. No, that's I don't support that statement or step, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसी एक स्टेप ने हमारे साथ हमें बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं. अगर चाइना भी नहीं होता तो ठीक था, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. तो दिस इज हाउ यू शुड रियली स्टडी हिस्ट्री. तो दोनों क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए. Whether the seat we should have taken the seat, yes, answer is yes. पर क्या नेहरू was a weak prime minister? Did he not know things? इन सब चीज़ों को जानने से पहले, इन सब चीज़ों पे कमेंट करने से पहले हमें चीज़ें जो हैं बहुत तमीज़ से तरीके से समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए. अगर आप किसी एक नेता की बातें सुनकर या किसी एक न्यूज़ रिपोर्टर की बातें सुनकर अपना एक हिस्टोरिकल फैक्ट बना लेते हैं, दैट्स नॉट हिस्ट्री, दैट्स स्टोरी दैट यू आर फॉर्मिंग, एंड nobody is happy with that story, only you. Whenever you have to read history, study history, आप किताबों का इस्तेमाल करिए. बहुत हिस्टोरियंस हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, ठीक है. तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि कैसे हिस्ट्री को हमें अप्रोच करना है. So this was it. And history is never yes and no, never black and white. And I would again reiterate this: please read before you judge.